Hi friends, this is Sudhindra here from Wealthy Workshop. So today you are going to learn something interesting, something new, जो आपके trading में भी help करेगा, आपके charts analysis में भी help करेगा, which will in turn help in your trading decision as well. Or whether the trend is bullish, bearish, or whether the trend is going to change, or whether the trend is going to take support here or resistance here. ये वीडियो देख के आपको पता लगेगा. So it's a very simple concept, magic band, but it's a very powerful concept. ठीक है, तो अगर ये आप लगाएंगे चार्ट्स पे आज से तो आपको क्लियर कट ट्रेंड पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, मीडियम टर्म ट्रेंड क्या है, एंड व्हाट इज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड. So all three types of trends you can recognize by using this simple magic band strategy. Not strategy, I'm going to explain you the concept first. बहुत ही simple है, but जरूर आप charts पे apply करके देखना. It will really help you in determining which trend is going on in a particular stock or Nifty, Bank Nifty, whatever stock, or even commodities, currencies. You can apply this magic band. ठीक है, बहुत ही simple है. So let me share my screen. Okay, so we'll go into the charts now. I hope you can see my screen here right now. ठीक है, so like we'll start with Nifty. तो निफ्टी में दिखाऊंगा, बट फर्स्ट लेट मी टेल यू कि ये मैजिक बैंड ऐड कैसे करते हैं. हाउ डू वी ऐड द मैजिक बैंड. ठीक है, सो इन एनी सॉफ्टवेयर यू विल गो और चार्टिंग प्लेटफॉर्म और चार्टिंग वेबसाइट, यू विल फाइंड मूविंग एवरेज हियर. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज इस चार्ट में मूविंग एवरेज इज हियर. ठीक है, गो टू मूविंग एवरेज, सिलेक्ट पीरियड 20. तो ये बाय डिफॉल्ट हमको 20 सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट 20 पीरियड में वी हैव टू पुट इन 20. And MA method will be simple. So don't select exponential. हमको simple select करना है, simple. ठीक है, no exponential or any other thing, only simple. और फिर दो बार आपको ऐड करना है 20 moving average. First select high and then click OK. And again go to moving average and then select the same thing. यहाँ पे गया indicators. And again go to moving average, select 20, simple. पहले हमने high select किया था, अभी low select करना है. ठीक है, so don't select close, open or close or open. Select high once and again add 20 MA simple moving average and again select low. लो को select करके apply करेंगे तो ये जैसे मैंने देखा ये magic band आ जाएगा रेड कलर का. If you see, this is the magic band. This is the 20 MA high and this is the 20 MA low. तो दो बैंड्स दिखेंगे आपको, दो लाइंस मूविंग एवरेज. दिस इज कॉल्ड द मैजिक बैंड. और ये जो पर्पल कलर का लाइन देख रहे हैं, दिस इज द सिंपल 20 मूविंग एवरेज. ठीक है, दिस इज द सिंपल 20 मूविंग एवरेज. तो ये जो टू रेड कलर लाइंस यू कैन सी, दिस इज द मैजिक बैंड. ठीक है, तो ये मैजिक बैंड कैसे यूज करना है. सो आई होप यू अंडरस्टूड कैसे ऐड करना है. 20 मूविंग एवरेज, सिंपल, हाई. Then again add 20 moving average, simple, select low. So you will find two lines and you can select any color. A white background है तो red will be good. तो red color के दो band आ जाएंगे, दो lines आ जाएंगे यहाँ पे. So automatically एक band बन जाएगा. ठीक है, 20. This is the 20 MA magic band. ठीक है, ना इसमें क्या देखना है हमको. Now if you see, this is the monthly chart of Nifty. तो monthly chart में क्या है, this is the long term trend. तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, मीडियम टर्म ट्रेंड नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है. लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग, नेक्स्ट 3 months 6 months का ट्रेंड अगर हमको देखना है तो वी हैव टू सी द मंथली चार्ट. ठीक है, तो मंथली चार्ट में देख सकते हैं, दिस इज द रेड कलर मैजिक बैंड. आई विल शो यू दिस. दिस इज द मैजिक बैंड हियर, दिस वन एंड दिस वन. ये मैजिक बैंड है. एंड करंटली व्हाट डू यू सी, द कैंडल और द प्राइस इज अबव दिस मैजिक बैंड. That means it is clear indication. जैसे ये मैजिक बैंड को ऊपर क्रॉस किया around this level, तो यहाँ पे क्लोज हुआ, the trend has been super bullish on the long term charts. ठीक है, not on the short term but on the long term monthly chart देख रहे हैं हम. तो monthly chart में अभी भी you can see it is above the magic band. That means it's bullish. And you can also check the direction of the magic band. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मैजिक बैंड की देख सकते हैं, दोनों रेड कलर के जो लाइंस है, इट इज राइजिंग अपवर्ड्स. तो दैट आल्सो गिव्स एन इंडिकेशन इट इज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट. तो यहाँ पे डायरेक्शन नीचे नहीं हुआ है मैजिक बैंड का, ये स्ट्रेट या फ्लैट नहीं हुआ है, इट इज स्टिल राइजिंग. तो अभी भी राइजिंग है, दैट मीन्स अभी भी ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट.
एंड प्लस हमको आरएसआई कंफर्मेशन भी है, आरएसआई भी यहाँ पे बुलिश है, तो मैजिक बैंड का भी कंफर्मेशन है एंड 20 मूविंग एवरेज का भी कंफर्मेशन है, मैजिक बैंड का भी कंफर्मेशन है एंड आरएसआई इज आल्सो कंफर्मिंग द levels are bullish. तो यहाँ पे तीनों indicators are indicating its long term trend is still bullish. अभी भी long term trend change नहीं हुआ है, ठीक है ना. Now let's go to the weekly chart. तो weekly chart में भी यहाँ पे देखेंगे the candle or the price is above the magic band, ठीक है, magic band के ऊपर है. But if you see here, magic band का direction थोड़ा सा flat है for the weekly chart. That means थोड़ा सा long term chart में direction ऊपर था, but medium term trend weekly chart में the direction is flat, ठीक है, मतलब bullish है but not that momentum नहीं है इतना. If this would have been rising, then it would have been very good momentum, ठीक है, but weekly chart is also bullish because the price of the candle is above the 20 magic band, ठीक है, plus RSI is also bullish, so that's also an indication the trend is still bullish for the medium term, though the momentum is slightly less. Momentum कम है but जो trend है अभी भी bullish है medium term में. अभी हम daily chart में देखते हैं. तो daily chart में भी if you see price again or the candle again is above the 20 moving average. अभी भी है 20 moving average के ऊपर है. तो daily में भी trend bullish है, RSI भी bullish है. So short term trend भी indicate कर रहा है कि bullish है. Okay? तो ये अभी तक इंडिकेशन है कि इन ऑल थ्री टाइम फ्रेम, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, द प्राइस इज अबव द 20 मूविंग एवरेज बैंड, मैजिक बैंड. बट मंथली में द मैजिक बैंड इज राइजिंग, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी मोमेंटम है उसमें. मीडियम टर्म में थोड़ा सा फ्लैट हो गया है, शॉर्ट टर्म में अभी भी ऊपर है पर थोड़ा सा फ्लैट है, इतना राइजिंग नहीं है, ठीक है, बट द ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट. तो तीनों में मैजिक बैंड के ऊपर है, दैट मीन्स द ट्रेंड, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म अभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा मोमेंटम है, ठीक है. नाउ एक और चीज आप नोटिस करेंगे, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं. अभी हमको यूजिंग द मैजिक बैंड वी कैन कम टू नो उसके ऊपर या नीचे है तो ट्रेंड क्या है या डायरेक्शन क्या है या ट्रेंड क्या है. बट अभी इफ यू सी हियर, नाउ व्हेन द प्राइसेस फेल डाउन, या निफ्टी नीचे आया था फॉर 3-4 days, इट डिड नॉट क्लोज बिलो द मैजिक बैंड. यहाँ पे मैजिक बैंड है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ. इट वेंट हियर एंड फॉर्म्ड अ हैमर. तो इन अ वेरी गुड अप ट्रेंड, जब भी कोई भी ट्रेंड बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में अगर वो सपोर्ट लेता है मैजिक बैंड पे, दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन कि यहाँ से ये सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा. और वही हुआ यहाँ पर. यहाँ पे एक मैजिक बैंड पे एक हैमर बना. If you don't know about hammer, I hope you know about hammer, but जिनको नहीं पता है, it's a bullish candlestick pattern, ठीक है. तो यहाँ पे एक हैमर बना at magic band. तो whenever you get a bullish candle or a bullish candlestick pattern at the magic band, that's a very good indication the trend is still intact and the trend is going to continue after a slight retracement. तो यहाँ पे retrace हुआ थोड़ा सा trend, but उसको break नहीं हुआ या close नहीं हुआ, magic band के नीचे close नहीं हुआ. So it broke the upper band, but नीचे का जो band है, lower magic band, it did not close below it. So magic bands can act as very good supports in an uptrend and very good resistance in a downtrend. ठीक है, तो यहाँ पे वो support लेके फिर से bounce back हुआ. तो ये if you check the price here of magic band was somewhere around this level. It took support around this level. I'll just show you around this level. अराउंड 15,560 के लेवल्स पे सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे ट्रेंड बुलिश हो गया. दैट मींस इट बाउंस्ड बैक अगेन विद फर्स्टली हैमर ने कंफर्म किया, फिर एक बुलिश कैंडल ने भी कंफर्म किया और थोड़ा सा ट्रेंड फिर से बुलिश हो गया. तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ. ट्रेंड चेंज हो जाता अगर इट वुड हैव क्लोज्ड अब बिलो द मैजिक बैंड. मैजिक बैंड के नीचे अगर क्लोज होता देन ट्रेंड थोड़ा सा बेरिश हो जाता. बट हियर इट डिड नॉट क्लोज, इट जस्ट went below, formed a bullish candlestick pattern and then again bounced back. So the short term trend यहाँ पे bearish नहीं हुआ, it was still bullish because it took support there. तो support, whenever in a strong uptrend you'll always find magic band पे support लेके ऊपर जा रहा है. It can take support at the upper band, in between the upper and the lower, या lower band पे भी support ले सकता है, जैसे यहाँ पे lower band पे support लिया, ठीक है. So this is the
very important point which you should note down कि magic band acts as a support or a resistance in a downtrend. In an uptrend it will act like a support. So we'll just see some more examples, then you'll understand. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी retrace हुआ. If you see during this time in the month of May, trend prices went up here, it came below and it did not break the magic band. It took support here, formed a bullish candle and again bounced back. तो यहाँ पर भी it took support. It did not break and close below the magic band. So that's an indication कि मैंने ट्रेंड चेंज नहीं किया है, मार्केट ने ट्रेंड चेंज नहीं किया है. जब तक वो मैजिक बैंड के नीचे जाके ब्लैक कैंडल या बेरिश कैंडल बना के उसके नीचे आके क्लोज नहीं होता, कंफर्मेशन नहीं मिलता जब तक, तब तक वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है. सो अप ट्रेंड में इफ इट कम्स नियर द मैजिक बैंड, मतलब आपको देखना है कि वो सपोर्ट लेता है यहाँ पे या नहीं, विद अ बुलिश कैंडलस्टिक कंफर्मेशन. ठीक है, और बुलिश कैंडल कंफर्मेशन. ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पर भी इफ यू सी द ट्रेंड वाज अप हियर एंड इट केम अगेन बिलो, एंड यहाँ पे देयर वाज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न. जैसे यहाँ पे प्रो गैप भी था, सो दैट वाज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एट द मैजिक बैंड सपोर्ट. ठीक है, मतलब ये मैजिक की तरह वर्क करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मैजिक बैंड. ठीक है, मैजिक की तरह वर्क करता है. जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक हुआ. ठीक है, सो आई शोड यू 3 एग्जांपल्स, यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट द चार्ट्स. यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया विद अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न. दिस वाज द रीसेंट वन जस्ट लास्ट वीक. तो ये आपको देखना है, मैजिक बैंड अप्लाई करके देखिए. स्टॉक्स में भी ऑल्सो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड जस्ट सी द मैजिक कि वहां पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है. अगर ले रहा है तो बुलिश कैंडलस्टिक ने कंफर्म किया, उसके बाद प्राइसेस फिर से ऊपर जा रहे हैं. और सिमिलरली इन अ डाउन ट्रेंड वहां पे रेजिस्टेंस लेगा विद अ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इट विल कम डाउन अगेन इन अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड. ठीक है, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू शेयर. वैसे ही आप दूसरे स्टॉक्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन एनी टाइम फ्रेम, डेली, प्रेफरेबली द हायर टाइम फ्रेम्स विल बी बेटर. 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली पे ये मैजिक की तरह वर्क करेगा. ठीक है फ्रेंड्स, सो जस्ट हैव अ लुक एट द निफ्टी चार्ट फर्स्ट योरसेल्फ. अब बैक टेस्ट भी कर सकते हैं मैजिक बैंड अप्लाई करके कि कैसे वर्क हुआ है मैजिक बैंड सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके. And whenever it took support, it has always bounced back as we have seen in these 3 examples. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया. ठीक है, और अभी भी क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है अकॉर्डिंग टू द मैजिक बैंड, इट इज स्टिल इंटैक्ट. तो जब तक ये मैजिक बैंड के नीचे नहीं जाता मंथली चार्ट, द लॉन्ग टर्म ट्रेंड विल नॉट चेंज. द लॉन्ग टर्म ट्रेंड मतलब 6 महीने 1 साल का ट्रेंड जो भी है वो अभी भी इंटैक्ट है. और वीकली चार्ट में मीडियम टर्म ट्रेंड, इफ यू सी हियर, थोड़ा सा वीकली चार्ट में नीचे आया था बट इट टुक सपोर्ट एट द मैजिक बैंड, इट डिड नॉट क्लोज बिलो दिस, गो एंड क्लोज बिलो द मैजिक बैंड. यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, दैट मींस द मीडियम टर्म ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट. अभी भी वो चेंज नहीं हुआ है, बता रहा है हमको चार्ट. ठीक है, सो दिस इज हाउ मैजिक बैंड कैन वर्क. एंड डेली में शॉर्ट टर्म ट्रेंड, अगले 1 हफ्ते का, अगले 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का ट्रेंड देखना है तो डेली में देखना है. ठीक है, सो डेली में ऑल्सो इट टुक सपोर्ट एंड बाउंस्ड बैक. तो इफ यू सी वीकली में भी सपोर्ट लेके यहाँ पे बाउंस हुआ, इट डिड नॉट गो बिलो द मैजिक बैंड, दैट मींस इट इज टेलिंग अस कि मीडियम टर्म ट्रेंड हैज नॉट चेंज्ड. आई एम नॉट गोइंग डाउन, इट वाज जस्ट अ रिट्रेसमेंट इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ऑन द वीकली चार्ट. ठीक है, और मंथली अभी भी सुपर बुलिश है, डेली भी अभी भी अकॉर्डिंग टू द मैजिक बैंड इज बुलिश. तो इफ यू सी इट हियर आल्सो इट टुक सपोर्ट हियर, यहाँ पर भी सपोर्ट लेके, सो इट कैन टेक सपोर्ट एट द अपर बैंड, लोअर बैंड और इन बिटवीन द 2 बैंड्स. तो कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता है या 20 मूविंग एवरेज पे भी ले सकता है. यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस हुआ है. तो जब तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए इफ इट डजंट क्लोज बिलो द मैजिक बैंड, तब तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है. मीडियम टर्म ट्रेंड जब तक वो ब्रेक नहीं होता मैजिक बैंड के नीचे और नीचे क्लोज नहीं होता, तब तक मीडियम टर्म वीकली चार्ट पे मीडियम टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है. और शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर देखना है तो देखना है कि उस मैजिक बैंड को नीचे जा रहा है और क्लोज हो रहा है, दैट मींस इट्स अ स्लाइटली द ट्रेंड इज चेंजिंग फ्रॉम बुलिश टू नॉट सो बुलिश. ठीक है, फिर ट्रेंड नीचे आ सकता है, चांसेस है.
बट अभी भी चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि मंथली अभी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है और डेली भी बुलिश है अभी तक. इट हैज नॉट ब्रोकन द मैजिक बैंड, इट हैज जस्ट टेस्टेड एंड गिवन अस अ कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है हमको, बुलिश कैंडलस्टिक, और फिर से बाउंस हुआ. तो ये आपको देखना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड कैसे चेंज होना है, वो मैजिक बैंड से हमको पता चलेगा. और जिस दिन पता चला कि वीकली ट्रेंड चेंज हुआ है, डेली ट्रेंड चेंज हुआ है, देन मीडियम टर्म ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश हो जाएगा. तो आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, ऑप्शंस में भी शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज, पुट ऑप्शंस में, या बाय भी कर सकते हैं, या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं आप. ठीक है, तो वो अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है. So markets are still intact bullish, but it has not given us an indication कि मैं bearish हो गया हूँ. अभी वो indication नहीं मिला है हमको. But let's see, if we get an indication, obviously our view may change. But अभी तक वो indication monthly, weekly, daily पे नहीं मिला है. Weekly, daily पे आया था magic band support लेके फिर से ऊपर गया with a bullish candlestick confirmation. ठीक है, so I hope you learned something new, very simple and very easy to understand. ठीक है, so apply this on the charts yourself. I just showed you 3-4 examples of Nifty on the daily, week chart or weekly chart, but अभी ये आप जाके stock के chart में apply करके देख सकते हैं. Pick up any stock, Nifty stock, और वहां पे जाके magic band apply कीजिए और वहां पे support देखिए कि support ले रहा है. मैजिक बैंड पे आके क्या वो सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया है, अपर बैंड, लोअर बैंड, या इन बिटवीन द बैंड सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है. और अगर नहीं गया, नीचे आ गया, तो ट्रेंड बेरिश हुआ है या नहीं हुआ. तो यू कैन जस्ट बैक टेस्ट फॉर द लास्ट 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, जितना आप बैक टेस्ट करेंगे उतना कम है. तो बैक टेस्ट जरूर करना है. ठीक है, और प्लस इसकी भी एक स्ट्रैटेजी भी है, वो भी मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, बट आई विल सर्टेनली टेल यू. But it's a very simple thing. Just go, support ले रहा है, that means the trend is still intact, bullish trend. और similarly down trend में भी आप करेंगे तो opposite हो जाएगा, whether resistance लेके फिर नीचे आ रहा है. ठीक है friends, it's a very simple concept, magic band. Remember 20 simple moving average है with high and low. तो 2 बार आपको डालना होगा 20 MA simple high of a simple low, then you can get this 2 bands or 2 lines of the magic band. ठीक है, very simple concept. तो आप कोई भी चार्ट में जाके देखिए, वो आपको समझ में आ जाएगा. प्लस इफ यू चेक, इसके साथ RSI भी ऐड करेंगे तो डबल कंफर्मेशन मिलता है. जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया मैजिक बैंड ने विद अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, इफ यू सी देयर वाज RSI 60 सपोर्ट हियर. ठीक है, RSI पे भी 60 सपोर्ट ले रहा है एट द सेम टाइम जहां पे वो कंफर्मेशन मिला है मैजिक बैंड पे. सो दैट्स अ डबल कंफर्मेशन कि यहाँ पे डबल सपोर्ट है, तो और भी हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है. ठीक है, ट्रेड लेने के लिए. ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड लर्न, बट जस्ट डोंट सिट एंड वॉच दिस वीडियो. आई वांट यू टू गो आउट देयर एंड लुक एट द चार्ट्स बाय अप्लाइंग द मैजिक बैंड. तो सिर्फ आपको वीडियो देखना नहीं है, चार्ट्स पे जाके अप्लाई करना है एंड कंबाइन इट विद RSI कि आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. RSI भी कंफर्मेशन आपको साथ साथ में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, कंबाइनिंग इट विद RSI. ठीक है फ्रेंड्स, ओके. So remember, the long-term trend is going nowhere according to the charts, according to RSI, according to magic band, and whatever the other charts are telling. But daily में थोड़ा सा retracement हो सकता है, but it should not break the magic band and close below the magic band for the trend, for the short-term trend to change. ठीक है, I hope you understood. Watch this video again if you haven't understood, and go and look at the charts. तो कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आप investing.com पे भी जाके ये अप्लाई कर सकते हैं मैजिक बैंड. you'll find the same thing, charts. ठीक है, okay friends, thank you so much and keep learning. तो जितना आप लर्न करेंगे फ्री टाइम में या हॉलीडे में, उतना आपको वो हेल्प करेगा. See, learning is a continuous process. तो ऐसे नहीं कि एक बार सीख लिया आपने, वो आपको हो गया, जिंदगी भर आपको कुछ सीखना नहीं है. जो भी आप सीखते हैं उसको अपग्रेड करना होता है, बिकॉज वी आर एडवांसिंग, मार्केट्स आर एडवांसिंग, एवरीथिंग इज एडवांसिंग. तो एज द टाइम गोज वी हैव टू जस्ट रीलर्न और अनलर्न एंड लर्न सम फ्यू नगेट्स व्हिच विल हेल्प अस इन द फ्यूचर एज वेल. ठीक है फ्रेंड्स,
Thank you so much. See you in the next video. Thank you so much. Have a good day and keep learning and keep earning. Thank you so much.